दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 177। कल मैंने पढ़ा था 174, 175, 176 के बारे में। तो आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 177। तो स्टार्ट करें। 100 Indian Constitution's Article 177 article says rights of ministers and the Advocate General as respect the houses. 177 article says rights of ministers and Advocate General as respect the houses. Every minister and the Advocate General, every minister and the Advocate General for a state shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceeding of the Legislative Assembly of the state, or in the case of a state having a legislative sessions of the council, both houses, and to speak in and the otherwise to take part in the proceedings of any committee of the legislature of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote. Officers of the state legislature. 178 article says 178 article says the speaker and deputy speaker of the legislative assembly. Every legislative assembly of a state shall as soon as may be choose 2 members of the assembly to be respectively speaker and deputy speaker thereof, and so often as the office of speaker or deputy speaker becomes vacant, the assembly shall choose another member to be speaker or deputy speaker as the case may be. (179) article. 179 article says vacation and resignation of and removal from the offices of speaker and deputy speaker. 179 article says vacation and resignation of and removal from the offices of speaker and deputy speaker. A member holding office as speaker. A member holding office as a speaker or deputy speaker of an assembly, A, shall vacate his office if he ceases to be a member of the assembly. B, may at any time by writing under his hand addressed if such member is the speaker to the deputy speaker, and if such member is the deputy speaker is to speaker resign his office. And C, may be removed from his office by a resolution of the assembly passed by a majority of all the then members of the assembly, provided that no resolution for the purpose of clause C shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution. Provided further that whenever the assembly is dissolved, the speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the assembly after the dissolution. मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार।
177 अनुच्छेद कहता है सदनों के बारे में, मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में। प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वे उस राज्य की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोले और उनकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले। विधानमंडल की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वे मत देने का अधिकार नहीं होगा। जो महाधिवक्ता है उसको क्या है, कौन सा अधिकार नहीं है? वोट देने का अधिकार नहीं है। वो उन सदनों की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, बट वोट देने का अधिकार नहीं है 177 अनुच्छेद के अनुसार महाधिवक्ता को। राज्य के विधानमंडल के अधिकारी, राज्य के विधानमंडल के अधिकारी के बारे में बात करता है 178 अनुच्छेद। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये क्या है? राज्य के विधानमंडल के अधिकारी के रूप में जाने जाएंगे। 178 अनुच्छेद बताता है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। प्रत्येक राज्य की विधानसभा यथाशक्य शीघ्र अपने 2 सदनों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त करेगी। जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तब विधानसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। विधानसभा का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। जब ये दोनों अनुपस्थित होते हैं अपनी ड्यूटी से, तो उसकी जगह पे अन्य कोई उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। कौन? विधानसभा। 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग, पद से हटाया जाना। 179 अनुच्छेद बताता है, वर्णन करता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त, उनके पद रिक्त होने की स्थिति में क्या होगा, पद त्याग देने की प्रक्रिया, पद से हटाया जाना, इन सब चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है। विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य का यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। यानी वो विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। ऐसी हालत में, ऐसी स्थिति में, यानी जो अध्यक्ष होता है विधानसभा का अध्यक्ष, वो विधानसभा का सदस्य भी होता है। यदि वो विधानसभा की सदस्यता से हट जाता है तो वो अपना पद रिक्त कर देगा। नंबर खा, यदि किसी भी समय यदि वे सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित, और यदि वे सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। यदि किसी भी समय यदि वे सदस्य अध्यक्ष है तो वह उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना पद त्याग करेगा। यदि वे सदस्य उपाध्यक्ष है तो अपना पद त्याग करते समय संबोधित करेगा अध्यक्ष को और हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। गा, विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, विधानसभा के जो तत्कालीन समस्त सदस्य हैं विधानसभा के अंदर, उनके बहुमत से पारित, उनकी जो उसमें सदस्यों की मेजॉरिटी है उससे पारित संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। उनके बहुमत से पारित संकल्प जो भी विधानसभा के तत्कालीन समस्त सभी सदस्यों की संख्या के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। परंतु खंड गा के प्रयोजनों के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दे दी गई हो। इसमें क्या होता है, जब वो एक संकल्प जो पारित किया जाता है और उसके लिए सबसे पहले 14 दिन पहले एक सूचना देनी पड़ती है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाया जाएगा किन्हीं कारणोंवश, तो ये सूचना पहले देनी पड़ती है 14 दिन की। 14 दिन, कम से कम 14 दिन की सूचना देनी होती है, उसके बाद ये प्रक्रिया चलाई जाती है उनको पद से हटाने के।
पक्ष में। परंतु यह है कि जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। यदि ऐसी स्थिति में जब विधानसभा का जो प्रथम अधिवेशन होता है, उसकी बैठक चल रही होती है, ठीक उसके पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा, यानी वो अध्यक्ष अपने पद से नहीं हटेगा या अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। तो आज मैंने बताया कि राज्य के विधानसभा के अधिकारी, सदनों के बारे में मंत्रियों और अधिवक्ता के अधिकार, राज्यपाल का सदनों के बारे में मंत्रियों और अधिवक्ता के अधिकार, राज्य के विधानमंडल के अधिकारी, अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना, इसके बारे में मैंने बताया है। कल पढ़ूंगी अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट, लाइक करें एंड संविधान को पढ़ना भी ना भूलें। आप कोई किताब लीजिए और संविधान को फटाफट पढ़ना शुरू कर दीजिए। आर्टिकल्स पढ़िए और नया नया क्या चल रहा है देश में, करंट इश्यूज क्या हैं समाज के सामने, संविधान को संकट उत्पन्न करने वाली परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ समाज में क्या चल रही हैं, देश में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, इन पे भी ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, तभी तो जागरूक नागरिक बनोगे। तो इन सब चीज़ों को अपने स्टडी में इंक्लूड करें कि ज्वलंत मुद्दे क्या क्या चल रहे हैं समाज में, उसके साथ साथ कौन कौन सी समस्याएं घट रही हैं, जो संविधान, लोकतंत्र और मानव अधिकारों को कौन कौन सी जो पावर हैं वो चुनौती दे रही हैं। वो पावर तो वही होंगी जो हुलीगन टाइप की होंगी, जो गुन्स होते हैं, जो सोसाइटी को अलग ही दिशा में ले जाने की हमेशा सोचते हैं, हिंसात्मक तरीक़ों के तहत अराजकता फैलाने वाले तत्व, उनको पहचानना होता है। वो वही अधिकतर संविधान को चुनौती देते हैं, हमारी इंडियन जुडिशरी को चुनौती देते हैं, सभ्य समाज को चुनौती देते हैं। तो इन लोगों को पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है, इनके अगेंस्ट में रहना है, अपना एक अच्छे से यूनाइट रहना है। आप सब लोगों को, अच्छे नागरिकों को यूनाइट होकर इनको जवाब देना है, इनको पहचानना है, इनके खिलाफ फाइटिंग करते रहना है समाज में निरंतर। तभी हमारा लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाएं बचेंगी। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।